Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So we will cover more banking awareness, banking terms in this video. I am happy that we started a series where you are submitting your answers and the quality of answer is improving day by day. So today first term is forfeiting. Forfeiting is a concept related to exporters. Now this is a method of trade finance which allows an exporter to obtain cash funds. In case of international trade, when an exporter finds it difficult to receive money from importer, in such event, exporter sells his right to an agency that is called forfeiter. That means exporter will go to a forfeiter, give its rights to him, and he will receive the money immediately. This money he will get the total dues from the importer minus some charges or discount. So by doing this, now all the risk have been shifted to forfeiter and he gets the money and he can continue with his activities that he wants to carry on. Next is forgery. Forgery means any material alteration done in some documents or negotiable instrument with the intention to defraud is called forgery. That means there are certain rights. A person has issued a check for 5,000. Another person makes it 50,000. So this alteration is made with the intention to defraud. This is called forgery. So any changes made in some document or negotiable instrument simply to defraud is called forgery. Then is garnishee order. Garnishee order is related to a court concept and this is covered under section 60 of Civil Procedure Act. Say A is a person who has to take some money from B. He goes to court and files a case of recovery against B. In the meanwhile, he comes to know B is maintaining account with a particular bank and there is a balance. And there is a likelihood this person may withdraw the money by the time he wins the case. So what he will say, plead with the court is to issue a garnishee order so that bank is in position to attach this money till this court case is decided, and this order is called garnishee order. So A will obtain garnishee order directed towards the bank to freeze the account or attach the account. Then general lien. General lien is a right of creditor to retain possession of goods or to retain credit balance of debtors to set off against its debts. Meaning whereby, say there is a person A, he has taken loan from our bank and we come to know that he is maintaining some credit balance also. So even if he has not signed any lien documents, bank has general lien. That means bank can exercise right of set off to adjust this debit balance against this credit balance. Then guarantee. Guarantee is a concept where an agreement is signed between a guarantor and beneficiary, wherein guarantor agrees to fulfill certain obligations if the other party fails to fulfill it. So to understand in simple language, say a person has taken the loan from the bank and bank asks to bring a guarantee. So B works as a guarantor. So B signs an agreement with the bank assuring that if A fails to repay the debt, he will be liable to pay the debt, and that is called guarantee. So guarantee is a common concept in banking where along with borrower we take the guarantee. Now if you watch all these videos from this playlist, your knowledge is bound to increase day by day. For current affair, I have suggested you a very good source. Link of that source is available in description. Click the link.
you will end up on the app. Download the app, take current year plan, apply coupon code AA03, you will get 10% discount, and then read current affair from there. To maintain good health, I have given you a playlist, very good videos. Watch these videos and stay healthy. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे। फोरफिटिंग क्या है? फोरफिटिंग एक ऐसा मेथड है ट्रेड फाइनेंस का जिसके अंतर्गत एक एक्सपोर्टर अपने राइट एक एजेंसी को बेचता है, और ये राइट क्या है? जो उसने मनी इंपोर्टर से रिसीव करनी है। मान लो उसको दिक्कत आ रही है इंपोर्टर से ये पैसा रिसीव करने में, और उसको इमीडिएट ये पैसा चाहिए, तो वो एक फोरफिटर के पास जाएगा जो इस राइट को ले लेगा, और जो पैसा उसमें से मिलना है इंपोर्टर से, उसमें से अपने चार्जेस काट के, जो डिस्काउंट कहलाता है, वो बाकी पैसा एक्सपोर्टर को दे देगा। इससे क्या हुआ? एक्सपोर्टर को इमीडिएट पैसा मिल गया, कैश मिल गया, फंड्स मिल गए, उसका काम चलना शुरू हो गया, और जो फोरफिटर है इंपोर्टर से अपने पैसे की रिकवरी अपने तरीके से करेगा। अगला टर्म है फोर्जरी। फोर्जरी का अर्थ ये है कि कोई हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चेक है या और कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ चीज़ों के हक एक दूसरों के डिसाइडेड है। मान लीजिए एक चेक 5,000 रुपये का इशू किया ड्रार ने, और किसी ने उसको बदल के 50,000 का कर लिया, तो क्या कहलाएगा? ये मटेरियल अल्ट्रेशन, क्योंकि राइट बदल गए पार्टीज के। अगर ये अल्ट्रेशन फ्रॉड करने की इंटेंशन से किया गया है, दूसरे को डीफ्रॉड करने की इंटेंशन से किया गया है, तो इसको हम फोर्जरी कहते हैं। तो फोर्जरी में इंपॉर्टेंट क्या है? इंटेंशन। एक्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, पर इंटेंशन क्या है? डिफ्रॉड। एक हम चेंजेस करते हैं विद द कंसेंट, तो वो फोर्जरी नहीं है। गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर एक कोर्ट का ऑर्डर है जो सेक्शन 60 सिविल प्रोसीजर एक्ट के अंतर्गत मिलता है। अब इसमें क्या है? ए व्यक्ति है जिसको बी व्यक्ति से कुछ पैसे रिकवर करने हैं, बी उसको पैसे नहीं दे रहा, ये कोर्ट में चला जाता है बी के अगेंस्ट। अब वहां पर केस फाइल करता है। इस दौरान ए को पता लगता है कि इस व्यक्ति का बैंक में भी खाता है, और अगर ये कोर्ट का केस डिसाइड होने तक हमारा चलता रहा मुकदमा, हो सकता है ये पैसा निकाल ले वहाँ से, तो वो कोर्ट को एक रिक्वेस्ट करता है कि सर एक ऐसा ऑर्डर इशू कर दीजिए जो बैंक के अंदर इसका पैसा पड़ा है वो अटैच हो जाए, मीन्स ये ना निकाल पाए, और जो आपका फैसला आएगा उसके बाद अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये पैसा मुझे मिल जाए। तो ऐसे ऑर्डर को गार्निशी ऑर्डर बोलते हैं। तो कोर्ट बैंक को डायरेक्शन देता है कि जो आपका ये कस्टमर है इसके अकाउंट को आप अटैच कर दें, फ्रीज कर दें, और तब तक आप पैसा नहीं निकालने देंगे जब तक कोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिलेगी। जनरल लियन। जनरल लियन का मतलब है राइट ऑफ क्रेडिटर, मीन्स जिस व्यक्ति ने किसी दूसरे को उधार दिया है उसका ये वो हक है कि वो पोजेशन ऑफ गुड्स अपने पास रिटेन कर सके, या क्रेडिट बैलेंस उसके अकाउंट में है तो उसको रिटेन कर सके, और इसको वो सेट ऑफ कर सके अपने डेबिट बैलेंस के साथ। तो ऐसे हक को जनरल लियन कहते हैं। मीन्स ये है कि एक व्यक्ति है, उसने उधार ले लिया बैंक से, और बैंक के पास उसका क्रेडिट बैलेंस भी पड़ा है, तो चाहे वो उस पर लियन क्रिएट करे या ना करे, जनरल लियन बैंक के पास ऑटोमेटिक है। तो बैंक उसके क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकता है। सेट ऑफ का मतलब है कि उसका जहां क्रेडिट बैलेंस पड़ा है वहां से डेबिट करके वो अपने लोन अकाउंट में एडजस्ट कर सकता है। इसके बाद है गारंटी। गारंटी एक एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है गारंटर और बेनिफिशियरी के बीच में। बेनिफिशियरी कौन है? जो थर्ड पार्टी है। मीन्स मान लीजिए एक व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, जिसने लोन लिया वो बारोवर है। अब बैंक कहता है कि आप एक गारंटी भी लाओ, तो ये जो बी पर्सन है वो बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है कि अगर ए ने आपका पैसा वापस नहीं किया या जो उसने प्रॉमिस किया है उसको फुलफिल नहीं किया, तो आप ये पैसा मुझसे रिकवर कर सकते हैं। तो जो इस तरह का वो एग्रीमेंट साइन करता है उसको गारंटी कहते हैं, उसको गारंटी कहते हैं। तो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट की शेप में उपलब्ध हैं, जिनको आप निरंतर देख के अपनी बैंकिंग की नॉलेज बढ़ा सकते हैं।
फिर करंट अफेयर के लिए मैंने आपको अच्छा सोर्स बताया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक को क्लिक करिए। क्लिक करके आप ऐप पे पहुंचेंगे। इस साल का प्लान वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए और कूपन कोड AA03 लगा लीजिए, 10% आपको ऑफ मिल गया। कैसे अच्छी सेहत मेंटेन करें, ये वीडियोस की भी प्लेलिस्ट मैंने आपको दी है। इन वीडियोस को जरूर देखें और उसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में ढालिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।